Tell us, how is your experience? So it's really nice to be able to be here in IFI. I'm from Brazil. It's a long journey to come here. So I'm very thankful for the festival to have invited us and give us this opportunity to show our film to a different culture and realize that we can communicate a lot through films. Now, what film are you, at this IFI? What's the film? I am here to present The First Death of Joanna. It's my second feature as director and her first feature as an actress. What's your experience at this IFI? Everything's amazing, and I'm very happy to be here. And it's that. How was your acting in the film? Como é que foi a tua experiência de atuar no filme? Posso falar em português? Tá, não. Experimenta. It was my first work as actress, and it's amazing play my character, and I learned so much with her. How much hard work have you put in for acting? O quanto de trabalho você colocou no para conseguir atuar? I think this is hard for us to speak in English. Quer tentar falar em inglês? Então pode falar em português. Como é que foi para ti? Qual foi o trabalho de preparação para isso? Nós tivemos um trabalho bastante longo até chegar nas gravações, com preparações de elenco, e tudo foi muito importante para a gente conseguir criar o nosso personagem e criar ligações com o elenco também. Besides IFI, what other things you will be seeing in Goa? Well, we didn't have time yet to see much, but we went to Fontainhas, the Portuguese barrio, and to Candolim, the beach Candolim. And that's it so far. We are very involved with the festival and the activities of the festival. And how many films have you planned to watch this IFI? Well, we're not sure yet because we have our screening, press conference, and other interviews, so we couldn't plan the schedule yet. How you feel acting in the film and then real you? Como é que você se sente nessa diferença entre a personagem atuando no filme e a Isabela real? Foi muito novo poder me ver numa tela de cinema, mas a Carolina e eu, a gente tem muita coisa em comum, e por termos a mesma idade, a gente também se identifica muito. You want to do your career in acting? Você quer seguir carreira como atriz? Com certeza. Wishing you all the best. Yeah, thank you very much.
ये पांडा चिड़ा जो फिल्म है वो एक बच्चे की जर्नी है, उसके सवालों की जो क्यूरोसिटी है, उन क्यूरोसिटी को लेकर के वो दुनिया के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहता है और सोसाइटी और उसका परिवार जो है उन सवालों के जवाब नहीं देता है और धीरे धीरे उसको उस सवाल का जवाब खुद अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मिलता है। तो पांडा चिड़ा इसी के बारे में, जैसे हम सबके बचपन में जो सवाल होते हैं हम पूछते रहते हैं और हमको उसका जवाब अपने परिवार से ना मिलके अपनी लाइफ से और अपने वर्ल्ड से मिलने लगते हैं, उसी के बारे में ये फिल्म है। सो ये कैसा आया स्टोरी आपके मन में? ये स्टोरी जो है हम सब लोग जो है मिलके अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आपके भी जीवन में ऐसे बहुत सारे सवाल रहे होंगे जब आप छोटे होते होंगे और ऐसे बिलीफ रहे होंगे कि आप लोग लगता होगा कि दुनिया में ऐसी चीज़ें ऐसी होती है क्योंकि घर वालों ने ऐसा बताया। और हम जब पूछे दादा दादी मर के कहाँ चले जाते हैं तो बोलते तारे बन जाते हैं, या बारिश कहाँ से होती है तो सबसे बोलते ऊपर भगवान करता है, हम कहाँ से आते हैं बोले भगवान कहाँ से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जो सवाल होते हैं उनके जवाब या तो नहीं दिए जाते हैं या फिर झूठे जवाब दिए जाते हैं। तो ऐसे हमारे भी बहुत सारे ऐसे बिलीव थे, बहुत सारे सवाल थे। मैं, मेरे सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, तो हम कभी ऐसे बातें करते थे अपने बचपन के बारे में, तो सब बातें बनती थी और फिर उसको रिलेटेड होके तो एक हमारे एडिटर थे जिन्होंने कहानी लिखा था और हमने इसको पूरा फिल्म बना दिया। ये अभी प्लानिंग कैसा किया ये फिल्म देखिए मैं जो हूँ FTI का स्टूडेंट रहा हूँ, FTI पुणे का, और हम सब मिलके हम हमारे जो सिनेमेटोग्राफी के स्टूडेंट जो हैं, एडिटिंग के जो स्टूडेंट हैं, साउंड के स्टूडेंट, वो सब मिलके स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो जब हम अपनी स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहे थे तो भी हम ये सोच रहे थे कि जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो पहली फिल्म कम से कम साथ बनाएंगे, चाहे वो नॉन फीचर फिल्म ही क्यों ना हो। तो जब हमने अपना डिप्लोमा कर लिया तो हम 4 लोग 5 लोग मिल करके एक प्रोड्यूसर को के साथ हम मिले, उन्होंने एक यही कहानी के ऊपर बात किया और उन्होंने बोला हम भी प्रोड्यूस करने को तैयार हैं और हमने कहा ठीक है हम भी इस पे काम करते हैं। तो डिप्लोमा ख़त्म करते ही अगले 4-5 महीनों में हमने ये दूसरा फिल्म भी चालू कर दिया, जिसकी वजह से हमको मौका मिला कि हम पुणे में और समय गुजार पाएँ। तो पूरा फिल्म हमने वहीं FTI में रहकर ही ये वाला फिल्म भी कंप्लीट किया और इट्स गुड दैट नाउ इट हैज़ रीच्ड अप टू FTI। कभी फिल्म बाज़ार में ये आपका डाला था? नहीं, फिल्म बाज़ार में मैंने नहीं डाला है कभी। मैंने FTI के लिए अप्लाई किया है फिल्म ख़त्म करने के बाद, एंड लकीली इट इज़ हेयर। लास्ट टाइम ऑल्सो FTI का एक मूवी मेनिया करके कॉन्टेस्ट हुआ था, तो वहाँ 72 आवर्स में एक थीम पर एक फिल्म बनाना था, तो वो हमने बनाया था, उसमें भी हमारी फिल्म को अवार्ड था। और इस बार इधर इंडियन पैनोरामा में। अभी कितना स्क्रीनिंग है यहाँ? कितना स्क्रीनिंग है मतलब हमारा स्क्रीनिंग कल हुआ था एंड गुड फुटफॉल, बहुत सारे लोग आए देखने। हमारा और प्रवास दोनों फिल्मों का साथ हुआ और आई गॉट गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो। द बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म इज़ टू मेक पीपल इमोशनल, और वो हमको लगा कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि फिल्म टच करती है, तो वो अपने वो इमोशनल पार्ट अभी बोला ना, वो ट्रेन करने को बहुत मुश्किल है। तो आप लोग ऐसा ये इमोशंस जो चाहिए आपकी फिल्म में वो कैसा निकाला? देखिए ऐसा बोला जाता है कि सिनेमा के अंदर जो है ना वो कहानी कहना और कहानी किस तरह से कहना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। कहानी इस तरह से कही जानी चाहिए कि वो इमोशन को टच करे या लोगों को टच कर पाए, तो उसकी पर्टिकुलर टेक्निक है जो मैंने अपने फिल्म स्कूल के टाइम पर सीखे हैं और वो हमने एम्प्लॉय किया कि स्क्रीन प्ले में कहाँ पर कॉमेडी डालना है, कहाँ पर, क्योंकि फिल्म जो है बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, इट्स अबाउट डेथ बेसिकली। तो देयर इज़ अ चाइल्ड, उस बच्चे की दादी के साथ की जो पूरा संवाद है वो मौत के इर्द गिर्द घूमता है और एक दिन वो दादी ख़त्म हो चुकी होती है, पर उससे उसको जीवन की एक सीख मिलती है। तो वो सेंसिटिव टॉपिक को इतना भी बेसिक रखा जाए कि वो फिल्म के बेसिक आइडिया को कहीं डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो वो हमने कोशिश किया और इस वजह से वो टच भी करती है, क्योंकि डेथ जो है इज़ एन अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, हाउ मच यू कैन इग्नोर इट, बट एट द एंड ऑफ द डे इंसान को मरना ही होता है। पर आप उसे कितने, हम बोलते ना रहे मौत के बारे में बात मत करो, उसके बारे में गंदा मत बोलो, क्योंकि मरने के बारे में बात करना एक शाप जैसा लगता है, टैबू जैसा बन गया है। तो वही सारी चीज़ें थी, तो उसको इतने सेंसिटिविटी भी रहे और हमारा फिल्म का इमोशन भी आई, दोनों का बैलेंस करना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था बट कोशिश किया। तो अभी जब ये फिल्म बनाने का ये किया तो हार्डशिप आपको आया लगता है कि जैसा स्पॉन्सर या प्रमोशन, कौन सा हार्डशिप आपको आया? हार्डशिप बेसिकली जब आया, मैं पुणे में शूट कर रहे थे हम लोग और बारिश का समय था और हम पहला दिन शूट करने वाले थे। ये हमारा FTI के बाद का पहला प्रोजेक्ट था और मुझे याद है कि हम सब निकल लिए और जहाँ हम शूट करने वाले थे, संगमेश्वर करके एक जगह है, वहाँ पूरा बाढ़ आ चुका था और पूरा हमारा स्पॉट पे, तो हम वहाँ बहुत देर वेट किए। वहाँ पे NDRF की टीम थी, वो बाढ़ का रिलीफ ऑपरेशन कर रही थी, कुछ लोगों की उसमें मौत हो चुकी थी उस बाढ़ में। तो पहला दिन तो हमारा वो शूट ही नहीं हो पाया।
तो उस दिन हम कुछ जगह छोड़ा, आसपास बेसिक शॉट लिए, बट तो हमको लगा कि ये क्या बात हुई कि हम पहला शूट करने वाले हैं, पहले ही दिन एक प्राकृतिक आपदा वहाँ पर आ गई और उसकी वजह से वैसा हार्डशिप रहा। और दूसरा हार्डशिप एज सच नहीं रहे, बिकॉज टीम जो है वो, क्योंकि हमारी फिल्म स्कूल की टीम थी, सब जानते थे, तो एक रैपो बनाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। और हम घूम घूम कर ही ज़्यादातर काम करते आए लगातार, तो अलग अलग जगह लोकेशंस पर जाते थे, वहाँ से हम फ्रेम्स लेते थे और मिल करके इस पूरा फिल्म को एग्जीक्यूट कर लिए। कभी स्पॉन्सरशिप का या प्रमोशन का तकलीफ कैसा है? नहीं, स्पॉन्सरशिप प्रमोशन का नहीं, हमने ये फिल्म एक्चुअली पिच की पॉकेट फिल्म्स को, जो कि यूट्यूब पर एक शॉर्ट फिल्म है, एंड दे आल्सो अप्रोच, आई गेस 2-3 पीपल अप्रोच्ड आवर फिल्म आफ्टर इट वाज गुड इन फेस्टिवल्स। तो पॉकेट फिल्म्स को हमने ये फिल्म, दे आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग इट नाउ ऑन यूट्यूब। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? नाउ एक्चुअली आई एम राइटिंग अ फीचर इन मुंबई, and that is getting shot very soon, and there are actors like Sanjay Mishra, Vijay Sethupathi sir, and Vikrant Messi, they all are there. It's getting shot there. Since you are from the film industry, I think it is advantage to you. Film industry as in film institute? Yes. फिल्म इंस्टीट्यूट का एडवांटेज एज सच है नहीं एक्चुअली। ऐसे बोलते हैं कि फिल्म स्कूल जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऑफ कोर्स, बट उस अल्टीमेटली जब आप ग्राउंड में आते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं या आप फिल्म बनाने जाते हैं, तो फिर आप ही होते हैं। आप चाहे फिल्म स्कूल से आए हों, चाहे आप न्यूयॉर्क से पढ़ के आए हों, लंदन से पढ़ के आए हों, या आप अपनी ज़िंदगी से सीखे हों, अपने एक्सपीरियंस से सीखे हों। हर कोई ये है कि कैमरा कहाँ लगाना है, सबका अलग अलग विजन हो सकता है। उस कैमरा का शॉट कैसे लेना है, वो हर किसी का अलग अलग विजन हो सकता है। तो ऐसा बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, बट ये है कि हमने इस बारे में पढ़ा कम से कम। बाकी लोगों ने अलग तरीके से पढ़ा होगा। हमने फिल्म स्कूल में रह के पढ़ा, कुछ लोगों ने ज़िंदगी में रह के पढ़ा, कुछ लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने फिल्में देख के भी पढ़ा होगा। वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो अल्टीमेटली यही है कि लोग अपना मीडियम चुन लेते हैं। इफ़ यू सी, बहुत सारे बड़े फिल्म मेकर्स हैं, वो बहुत बड़े फिल्म स्कूल से नहीं हैं, बट क्योंकि उनको सिनेमा कहने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, इसलिए उनकी फिल्में चलती हैं। बस यही है। हाँ, तो अभी आपका मैसेज क्या है? जो नया अभी डायरेक्टर्स बनता है, फिल्म बनाने का उनको बहुत ये शौक है, तो उनका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज यही है कि वी शुड मेक फिल्म्स, दैट शुड बी द होल आइडिया, एंड डोंट मेक मूवीज़ टू मेक मोर मनी, मेक मूवीज़ टू मेक मोर मूवीज़। ज़्यादा फिल्में बनाइए और ज़्यादा फिल्में बनाइए, ताकि आपको और मज़ा आए। मुझे लगता है अभी क्या है, इतना आसान है। अभी DSLR फिल्म पे शूट करना इजी हो गया है। इनफैक्ट आईफोन पे लोग फिल्में शूट कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन पे शूट कर रहे हैं, और कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी ईजी होती है। इट्स वेरी एक्सेसिबल। यू कैन हैव अ गिम्बल फॉर मोबाइल ऑल्सो, एंड यू कैन मेक इट वेरी सिनेमेटिक। इट विल लुक वेरी डिफरेंट। इट वोंट लुक यार ये तो फ़ोन पे शूट किया है। इफ़ यू सी, बहुत सारी आईफोन फिल्म्स हैं, दे लुक एज सिनेमेटिक एज अ रेड और एरी जो बड़े कैमरा हैं, उनके जैसा ही सिनेमेटिक दिखती हैं। बट यू हैव टू जस्ट लर्न द टूल्स, हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली,
एंड दे आर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। आपने फिल्म बनाई, ऐसा नहीं कि PVR में रिलीज़ नहीं होगी तो फिल्म नहीं रहेगी। अभी देयर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स आप तो देख ही रहे हैं, मतलब एवरी डे देयर इज़ न्यू फेस्टिवल इन न्यू सिटी। ये अपॉर्चुनिटी, OTT अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। अगर आपकी अच्छी फिल्म है, आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप OTT तक पहुंचाइए, यूट्यूब तक पहुंचाइए और ऐसे शॉर्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाइए, बट फिल्में ज़रूर बनाइए। उसके लिए वेट मत कीजिए कि मैं सिर्फ इसी कैमरे पे बना पाऊंगा या मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास एक्टर्स नहीं है। आप एक आवाज़ लगाइए। मैं कहता हूं आपके पास बहुत लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं किसी न किसी ज़रिए, कोई कैमरे से, कोई एक्टिंग करके, कोई कहानी लिख के। ऐसे लोगों को ढूंढिए और अच्छी टीम बनाइए और अच्छी फिल्में बनाइए, बट मेक गुड सिनेमा, कीप मेकिंग इट। दैट इज़ माई मैसेज टू पीपल। So how you enjoying this 51st EFI now? आई हैव बीन रेगुलर एट IFFI। मैं मतलब करीब 5-6 साल से लगातार आता रहा हूँ और यहाँ पे एज ए व्यूअर आता था शुरुआत में। अभी अच्छा है कि इस बार फिल्म लेकर आया हूँ और ऑफ कोर्स जो वाइब रहता है वो तो थोड़ा सा हल्का सा कमी ही है, बट फिर भी अच्छी बात है कि कंडक्ट हो रहा है। हम जैसे लोगों ने जो फिल्में बनाई हैं वो लोग देख रहे हैं, जो लोग अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं उन्हें फिल्में देखने को मिल रही हैं। ये इसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए 51st IFFI का कि उन्होंने एक फिजिकल फॉर्मेट में फेस्टिवल कंडक्ट किया। और बहुत समय से ऐसे फेस्टिवल नहीं हुए खासतौर पर देश में, सब ऑनलाइन हो रहा था, बट फिजिकली हम यहाँ आए, आप और मैं बात कर पा रहे हैं, मैं अलग फिल्म मेकर से मिल पा रहा हूँ, ऑडियंस का रिस्पॉन्स लाइव जान पा रहा हूँ। क्योंकि वर्चुअल मीडिया में क्या, आपका लिंक पहुँच गया, आपने यूट्यूब पे, वीमियो पे अगर वो देखा तो मुझे पता नहीं कि हाँ उस डायलॉग पे लोग हंसे या नहीं हंसे, वो अपने घर में हंसा भी होगा, बट यहाँ जब मैं कल में बैठा था तो मुझे पता लगा अच्छा तो आई कैन हेयर इट, अरे हाँ लोग इस पे हंस रहे हैं, आई कैन सी पीपल क्राइंग। तो वो फिजिकल, क्योंकि सिनेमा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है हर किसी का, पर्सनल एक्सपीरियंस जो कलेक्टिव स्पेस में देखा जाता है। किसी डायलॉग पे मैं रो सकता हूँ, मेरे बगल वाला नहीं रो सकता, बट वो होगा कलेक्टिवली, सब मिलके बैठ के ही उसको देखें, तभी उसको फिल्म उस तरह से बनाई जाती है। तो वो इसलिए इस फिजिकल फॉर्मेट में इसको कंडक्ट किया IFFI ने, INB मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने, ESG ने। उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि सिनेमा पे बात करने के लिए, सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट हो रहा है। Has the film industry affected due to COVID? Affected as in there was a short gap, but now things have started. People are making films. You might have seen अलग अलग हर रीजन में, हर स्टेट में जो फिल्म्स होती हैं वो लोग फिल्में बना रहे हैं, चाहे वो साउथ में हो, तमिल या मलयालम फिल्म्स हो, चाहे बॉलीवुड हो। तो अभी ऐसा अफेक्ट नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स जो नो इतना डिजिटल भी नहीं हुआ है, ऐसे OTT की भी एक अपना स्पेस है, वो होना चाहिए, और थिएटर का भी एक स्पेस है, वो भी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि कलेक्टिव स्पेस में लोग देखें तो थिएटर में ही देखेंगे तभी फिल्म एंजॉय। आप भी अगर एक सलमान खान का फिल्म जब अपने मोबाइल पे देखते होंगे वो एक्सपीरियंस अलग होगा, और वही सलमान खान का फिल्म एक हाउसफुल थिएटर में देखते हैं तो एक्सपीरियंस अलग होगा। पीछे वाले हंसते तो आपको भी थोड़ा हंसने में मज़ा आता है, पीछे लोग ताली बजाते हैं, आप भी उस सीन को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पर जब मोबाइल पे देखते हैं तो मोबाइल पे देखते हल्का सा मुस्कुरा के अगले सीन पे चले जाते हैं। तो वो दोनों चीज़ें बनी रहनी चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। Now, besides IFFI, what other things you would like to do in Goa now? इन गोवा आई हैव बीन रेगुलर टू गोवा, आई लव गोवा एक्चुअली। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ओल्ड गोवा बहुत अच्छा लगता है, और मैं प्लान कर रहे थे कि हम जाएंगे ओल्ड गोवा बिकॉज इट लुक्स वेरी सिनेमेटिक ऑल्सो। गोवा इज़ अ वेरी सिनेमेटिक फॉर अ फिल्म मेकर हु इज़ इंटरेस्टेड इन फ्रेम्स एंड एस्थेटिक। गोवा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज यू कैन फाइंड एवरीवेयर यू प्लेस द कैमरा देयर इज़ अ गुड शॉट, ऐसा है। Thank you very much and all the best. Yeah, thanks.
अशेंच नाका